رات کے 2 بج رہے تھے۔ واشنگٹن ڈی سی کی سڑکیں تقریباً خالی تھیں۔ بارش کی ہلکی بوندیں سڑک کی روشنیوں میں چمک رہی تھیں۔ ایک نوجوان آدمی اپنی میز پر جھکا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے معاشی رپورٹس، گراف اور نمبرز بکھرے ہوئے تھے۔ ظاہری طور پر وہ صرف ایک ماہر معاشیات تھا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ دنیا کے خطرناک ترین پیشوں میں سے ایک کا حصہ بن چکا تھا، اکنامک ہٹ مین۔ یہ لفظ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری عالمی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ یہ لوگ فوجی نہیں ہوتے، ان کے پاس بندوق نہیں ہوتی، ان کے پاس ٹینک یا میزائل نہیں ہوتے۔ ان کے ہتھیار ہوتے ہیں اعداد و شمار، رپورٹس اور قرضے۔ کام بہت سادہ لگتا تھا، کسی ترقی پذیر ملک میں جانا، اس کے حکمرانوں سے ملاقات کرنا۔ کیونکہ جتنا بڑا خواب اتنا بڑا قرض۔ عالمی مالیاتی ادارے اربوں ڈالر منظور کر دیتے، لیکن ایک راز تھا، وہ پیسہ کبھی عوام تک نہیں پہنچتا تھا۔ پیسہ سیدھا بڑی کارپوریشنز کے پاس جاتا، وہی کمپنیاں منصوبے بناتی، وہی فائدہ اٹھاتی۔ ملک کے حصے میں کیا آتا؟ صرف قرض۔ سال گزرتے جاتے، قرض بڑھتا جاتا، اور پھر ایک دن وہ ملک قرض واپس کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی لمحے اصل کھیل شروع ہوتا۔ اب فیصلے بدلنے پڑتے، اب پالیسیاں تبدیل کرنی پڑتی، اب آزادی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی۔ یہ قبضہ تھا، لیکن بغیر جنگ کے۔ نوجوان ماہر معاشیات شروع میں خود کو ہیرو سمجھتا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ دنیا بدل رہا ہے۔ اسے 5 اسٹار ہوٹلز ملتے، بزنس کلاس سفر، طاقتور لوگوں کے ساتھ ڈنر، ہر چیز خواب جیسی تھی۔ مگر پھر اس نے کچھ دیکھا، ایسے شہر جہاں بجلی کے بڑے پلانٹ بنے تھے، لیکن ارد گرد کی بستیاں اندھیرے میں ڈوبی تھیں۔ ایسی شاہراہیں جو صرف امیروں کے علاقوں تک جاتی تھیں، جبکہ غریب مزید غریب ہو رہے تھے۔ ایک سوال اس کے ذہن میں بار بار گونجنے لگا، اگر ہم ترقی لا رہے ہیں تو لوگ بدحال کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی دوران اسے ایک اور سچ بتایا گیا، اگر کوئی لیڈر انکار کرے تو پہلے مواشی دباؤ ڈالا جاتا ہے، اگر پھر بھی نہ مانے تو دوسرے لوگ آتے ہیں۔ انہیں جیکلز کہا جاتا تھا۔ حادثات ہوتے، حکومتیں بدل جاتی، اور دنیا اسے محض اتفاق سمجھتی۔ اس رات واشنگٹن کے اس دفتر میں بیٹھا وہ آدمی پہلی بار ڈر گیا، کیونکہ اب اسے سمجھ آ چکی تھی وہ صرف ایک ملازم نہیں تھا، وہ ایک ایسے نظام کا حصہ تھا جو دنیا کے نقشے کو خاموشی سے بدل رہا تھا۔ ایک ایسا نظام جہاں جنگیں نیوز چینلز پر نہیں دکھائی دیتی، جہاں ملک گرتے ہیں مگر بم نہیں گرتے، جہاں طاقت گولی سے نہیں قرض سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور اسی لمحے اس کے اندر ایک جنگ شروع ہوئی۔ ایک طرف دولت، طاقت اور کامیابی تھی، دوسری طرف ضمیر۔ یہ صرف ایک پیشہ نہیں تھا، یہ ایک راز تھا، ایک ایسا راز جو اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو شاید عالمی نظام پر لوگوں کا یقین ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ یہی اس کہانی کی ابتدا ہے، خاموش جنگ کی ابتدا، اور ایک ایسے شخص کی داستان جو اندر سے ٹوٹنے والا تھا مگر سچ چھپانے سے انکار کرنے والا تھا۔ یہ صرف ایک کتاب کی کہانی نہیں، یہ طاقت کی کہانی ہے، کنٹرول کی کہانی ہے، اور اس سوال کی کہانی ہے، کیا واقعی دنیا آزاد ہے؟ ہر کہانی کا ایک موڑ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ موڑ اتنا خاموش ہوتا ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔ یہ سب ایک سادہ سی نوکری سے شروع ہوا، ایک نوجوان، ذہین، باصلاحیت جس کے دل میں کامیابی کی آگ تھی۔ وہ کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا، وہ عام زندگی نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دن ایک خاتون اس کی زندگی میں داخل ہوئی، پر اعتماد، پر اسرار اور غیر معمولی طور پر با اثر۔ اس کی مسکراہٹ نرم تھی، لیکن سوال گہرے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم ایسے لوگوں کی تلاش میں ہیں جو دنیا کو بدل سکیں۔ یہ جملہ کسی بھی پرجوش نوجوان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ انٹرویوز شروع ہوئے، لیکن یہ عام انٹرویو نہیں تھے۔ سوال صرف قابلیت کے نہیں تھے، سوال وفاداری کے تھے۔ اگر تمہیں سچ اور کامیابی میں سے ایک چننا ہو تو کیا چنو گے؟ اگر تم جانتے ہو کہ تمہارا کام ہزاروں لوگوں کو متاثر کرے گا لیکن تمہیں ذاتی فائدہ دے گا تو کیا تم رک جاؤ گے؟ یہ سوال ذہن میں گونجتے رہے۔ پھر تربیت شروع ہوئی، ایک خفیہ تربیت۔ یہاں اسے سکھایا گیا کہ نمبروں کو کیسے کہانی بنایا جاتا ہے،
आदाद व शुमार को कैसे मोड़ा जाता है, पेश गोइयों को कैसे बढ़ाया जाता है। हकीकत अहम नहीं होती, उसे बताया गया। अहम ये है कि रिपोर्ट पढ़ने वाला क्या देखना चाहता है। उसे सिखाया गया कि ताकतवर लोगों से कैसे बात की जाती है, उन्हें कैसे कायल किया जाता है, उन्हें कैसे ये यकीन दिलाया जाता है कि वो अपने मुल्क के लिए बेहतरीन फैसला कर रहे हैं। असल में वो फैसला किसी और के फायदे के लिए होता था। तरबियत के दौरान एक और बात वाज़ेह कर दी गई, हम फौज नहीं हैं, हम खुफिया। पहला मिशन करीब आ रहा था। दिल में जोश भी था और अनजाना सा खौफ भी। उसे बताया गया, तुम एक तरक्की पजीर मुल्क जा रहे हो। तुम्हारा काम उन्हें ये यकीन दिलाना है कि वो अरबों डॉलर का कर्ज ले। अगर वो मान जाएं तो सब कुछ आसान होगा, और अगर ना माने। इस सवाल पर कमरे में खामोशी छा गई। फिर धीरे से जवाब आया, फिर दूसरे लोग संभाल लेंगे। ये अल्फाज सादा थे, मगर उनके पीछे एक साया था। तरबियत खत्म हुई, वो अब तैयार था, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। लेकिन ये आम इंटरव्यू नहीं थे। सवाल सिर्फ काबिलियत के नहीं थे, सवाल वफादारी के थे। अगर तुम्हें सच और कामयाबी में से एक चुनना हो तो क्या चुनोगे? अगर तुम जानते हो कि तुम्हारा काम हजारों लोगों को मुतासिर करेगा लेकिन तुम्हें ज़ाती फायदा देगा, तो क्या तुम रुक जाओगे? ये सवाल जहन में गूंजते रहे। फिर तरबियत शुरू हुई, एक खुफिया तरबियत। यहाँ उसे सिखाया गया कि नंबरों को कैसे कहानी बनाया जाता है, आदाद व शुमार को कैसे मोड़ा जाता है, पेश गोइयों को कैसे बढ़ाया जाता है। हकीकत अहम नहीं होती, उसे बताया गया। अहम ये है कि रिपोर्ट पढ़ने वाला क्या देखना चाहता है। उसे सिखाया गया कि ताकतवर लोगों से कैसे बात की जाती है, उन्हें कैसे कायल किया जाता है, उन्हें कैसे ये यकीन दिलाया जाता है कि वो अपने मुल्क के लिए बेहतरीन फैसला कर रहे हैं। असल में वो फैसला किसी और के फायदे के लिए होता था। तरबियत के दौरान एक और बात वाज़ेह कर दी गई, हम फौज नहीं हैं, हम खुफिया। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज थी जो पूछ रही थी, क्या ये वाकई तरक्की है या किसी बड़े खेल का हिस्सा? मगर उस वक्त ज़मीर की आवाज कामयाबी के शोर में दब गई। पहली बिजनेस क्लास फ्लाइट, पहला 5 स्टार होटल, पहली सरकारी मुलाकात, हर चीज ख्वाब जैसी थी। और ख्वाब अक्सर इंसान को हकीकत से दूर ले जाते हैं। उसे अंदाजा नहीं था कि वो जिस रास्ते पर कदम रख चुका है वो सिर्फ दौलत और ताकत की तरफ नहीं जा रहा, वो उसे एक ऐसे सच की तरफ ले जा रहा है जो उसकी नींदें छीन लेगा। एक ऐसा सच जो साबित करेगा कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं, कर्ज होता है। और वो अब उसी हथियार का इस्तेमाल सीख चुका था। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये एक मुआहिदा था, ताकत के साथ, खामोशी के साथ, और एक ऐसे निजाम के साथ जो नजर नहीं आता मगर पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। ये थी उसकी खुफिया भर्ती, और असल खेल अब शुरू होने वाला था। पहला मिशन, इंडोनेशिया। जहाज आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। खिड़की से बाहर एक नया मुल्क फैला हुआ था। सब्ज जंगलात, लंबी सड़कें, समंदर की नमी से भरी हवा। ये इंडोनेशिया था। नौजवान इकोनॉमिक कंसल्टेंट के लिए ये सिर्फ सफर नहीं था, ये उसका पहला हकीकी इम्तिहान था। ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी, अब नजरिया नहीं अमली खेल शुरू होने वाला था। एयरपोर्ट पर सरकारी गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। ड्राइवर खामोश था, शहर मसरूफ था, मगर उसके अंदर अजीब सी बेचैनी थी। उसे याद था ट्रेनिंग के दौरान कहा गया एक जुमला, पहला मिशन हमेशा सबसे अहम होता है, वही फैसला करता है कि तुम किस किस्म के इंसान बनोगे। होटल पहुंचते ही मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया। वजारत के अफसरान, मुशीर, सरमायाकार, हर कोई तरक्की की बात कर रहा था। मुल्क को बिजली चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, मुस्तकबिल चाहिए था, और वो मुस्तकबिल बेचने आया था। उसे एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, एक ऐसी माशी रिपोर्ट जो साबित करे कि अगर मुल्क अरबों डॉलर का कर्ज ले तो उसकी मईशत हैरानकुन रफ्तार से तरक्की करेगी। मसला सिर्फ एक था, असल आदाद शुमार कुछ और कह रहे थे। मईशत इतनी मजबूत नहीं थी। लोग गरीब थे, आमदनी कम थी, खतरात ज्यादा थे। लेकिन रिपोर्ट में खतरात नहीं लिखे जाते,
सिर्फ इम्कानात लिखे जाते हैं। रात देर तक वो लैपटॉप के सामने बैठा रहा। ग्राफ ऊपर जाते दिखाए गए, तरक्की के अंदाजे बढ़ाए गए, मुस्तकबिल को रोशन बना दिया गया। हर नंबर के साथ उसके अंदर एक सवाल पैदा हो रहा था, क्या ये हकीकत है या सिर्फ एक कहानी? अगले दिन उसे सदर की मुशीरों के सामने प्रेजेंटेशन देनी थी। कमरा बड़ा था, दीवारों पर कौमी परचम और मेज के गिर्द बैठे लोग अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला सुनने वाले थे। उसने इतिमाद के साथ बोलना शुरू किया, अगर ये मंसूबे मुकम्मल हो जाएं, तो इंडोनेशिया एशिया की ताकत बन सकता है। स्क्रीन पर ग्राफ चमक रहे थे, हर स्लाइड उम्मीद दिखा रही थी। वो बोल रहा था और लोग यकीन करते जा रहे थे। यही उसका असल काम था, कायल करना। मीटिंग के बाद एक सीनियर अफसर ने उससे हाथ मिलाया। आपने हमें उम्मीद दी है। ये जुमला सुनकर वो मुस्कुराया, मगर अंदर कहीं कुछ टूटा, क्योंकि वो जानता था ये उम्मीद कर्ज पर मबनी थी। चंद हफ्तों बाद कर्ज मंजूर हो गया, अरबों डॉलर। खबरों में जश्न था, हुकूमत कामयाबी का ऐलान कर रही थी। लेकिन उसने एक और मंजर देखा। शहर से बाहर जाते हुए उसने झोपड़ियां देखी। बच्चे बगैर बिजली के खेल रहे थे, लोग पानी के लिए कतार में खड़े थे। उसे अचानक एहसास हुआ, ये मंसूबे शायद उन लोगों तक कभी नहीं पहुंचेंगे। पैसा कंपनियों को जाएगा, प्रोजेक्ट्स बड़े शहरों में होंगे और कर्ज पूरा मुल्क अदा करेगा। उसी शाम एक अमरीकी बिजनेसमैन ने डिनर पर कहा, यह सब निजाम का हिस्सा है। हम तरक्की देते हैं और असर व रसूख हासिल करते हैं। यह जुमला सादा था, मगर हकीकत बहुत भारी। पहली बार उसे समझ आया कि इकोनॉमिक हिटमैन का असल मिशन क्या है। यह किसी मुल्क की मदद नहीं, यह उसे निजाम का हिस्सा बनाना है, कर्ज के जरिए वाबस्ता करना। इस रात वो होटल की बालकनी में खड़ा देर तक शहर देखता रहा। नीचे रोशन इमारतें थी और दूर अंधेरी इलाके, दो मुख्तलिफ दुनियाएं। एक तरक्की की, एक हकीकत की, और वो दोनों के दरमियान खड़ा था। उसी लम्हे उसे एहसास हुआ, ये सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं था, ये आगाज था। अब उससे अगले मुमालिक भी यही चाहते थे, मजीद रिपोर्ट्स, मजीद कर्जे, मजीद मुआहदे, और हर कामयाबी उसे निजाम के अंदर मजीद गहरा ले जा रही थी। वो वापस जा सकता था, मगर अब वो कामयाब हो चुका था, और कामयाबी कभी आसानी से इंसान को छोड़ती नहीं। जहाज जब वापस उड़ा तो उसके पास एक कामयाब मिशन की रिपोर्ट थी, लेकिन दिल में एक नया सवाल था, अगर ये सब दुरुस्त है तो मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा? ये सवाल उसके साथ सफर करने वाला था, और यही सवाल एक दिन पूरी दुनिया के सामने सच बनकर आने वाला था। कामयाबी इंसान को हमेशा आगे ले जाती है, और कभी-कभी वो उसे ऐसे रास्ते पर भी ले जाती है जहां से वापसी आसान नहीं रहती। इंडोनेशिया से वापसी के बाद सब कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक नया मुलाजिम नहीं रहा था, वो साबित कर चुका था कि वो निजाम के लिए कारआमद है, और यही वो लम्हा था जब असल तरबियत शुरू हुई। एक दिन उसे अचानक पैगाम मिला, कल सुबह 7 बजे हाजिर हो, नया ब्रीफिंग सेशन। कोई मकाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक एड्रेस। वो जब वहां पहुंचा तो ये आम ऑफिस नहीं था, सादा इमारत, बाहर कोई कंपनी का नाम नहीं, अंदर गैर मामूली खामोशी। रिसेप्शन पर बैठी शख्स ने सिर्फ उसका नाम पूछा और बगैर किसी सवाल के अंदर जाने दिया। कमरे में चंद लोग बैठे थे। अब तक तुमने माशियात सीखी है, अब तुम ताकत को समझोगे। ये तरबियत मुख्तलिफ थी। यहाँ इकोनॉमिक्स कम और इंसानी नफ्सियात ज्यादा सिखाई जा रही थी। उन्हें बताया गया कि दुनिया के फैसले आदाद व शुमार से नहीं होते, फैसले इंसान करते हैं।
और इंसान जज्बात से मुतासिर होता है। पहला सबक था, हर लीडर की एक कमजोरी होती है। किसी को शोहरत चाहिए, किसी को ताकत, किसी को तारीख में नाम। तुम्हारा काम मंसूबा बेचना नहीं, ख्वाब बेचना है। उन्हें रोल प्ले करवाए गए, फर्जी मुज़ाकरात, मुश्किल सवालात, दबाव वाले हालात। हर बार यही सिखाया गया, एतमाद पैदा करो, खतरात कम दिखाओ और मुस्तकबिल को शानदार बनाकर पेश करो। एक दिन ट्रेनर ने लाइट्स बंद कर दी, कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने कहा, याद रखो, हम कभी किसी मुल्क को मजबूर नहीं करते, हम उन्हें खुद फैसला करने देते हैं। फिर वो रुका और मुस्कुराया। हम सिर्फ ये तय करते हैं कि वो फैसला क्या होगा। ये जुमला सबके जहन में बैठ गया। तरबियत का अगला मरहला मजीद हैरानकुन था। उन्हें आलमी सियासत के नक्शे दिखाए गए। किन ममालिक में तेल है, कहां मादनियात हैं, कहां हुकूमतें गैर मुस्तहकम हैं। हर जगह एक मौका थी, हर बहरान एक इम्कान था। और फिर पहली बार उसने वो लफ्ज सुना जिसने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी, जैगल्स। कमरे में खामोशी छा गई। ट्रेनर ने वजाहत नहीं की, सिर्फ इतना कहा, अगर इकोनॉमिक हिटमैन नाकाम हो जाए तो दूसरे लोग काम मुकम्मल करते हैं। कोई सवाल नहीं पूछा गया, क्योंकि सब समझ गए थे कि कुछ राज जानना बेहतर नहीं होता। तरबियत के दौरान उन्हें सिखाया गया कि एक शाम वो तलहा बैठा था। उसके सामने दुनिया का नक्शा था। वो सोच रहा था, क्या वाकई वो मदद कर रहा है या कंट्रोल का हिस्सा बन चुका है? लेकिन अगले ही लम्हे उसे अपनी नई जिंदगी याद आई। बड़ी तनख्वाह, ताकतवर राब्ते, बैनुल अक़वामी हैसियत। और यही वो जाल था जो सबसे मजबूत होता है, सोने का जाल। इंसान कैद में होता है, मगर उसे आजादी महसूस होती है। तरबियत के आखिरी दिन उसे एक खुफिया फाइल दी गई। उस पर लिखा था, नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक टारगेट्स। ये सिर्फ फाइल नहीं थी, ये ऐलान था कि अब वो मुकम्मल तौर पर निजाम का हिस्सा बन चुका है। अब वो सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं लिखेगा, वो फैसलों को मुतासिर करेगा, मुल्कों की सिमत बदलेगा और शायद उनकी तकदीर भी। इमारत से बाहर निकलते वक्त उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा बंद हो चुका था और उसे पहली बार महसूस हुआ, असल तरबियत महारत सिखाने की नहीं थी, असल तरबियत ज़मीर को खामोश करने की थी। अब खेल मजीद बड़ा होने वाला था और अगला मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। कौमों को ख्वाब बेचने का फन। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? पैसा? फौज? सियासत? नहीं, सबसे ताकतवर चीज है ख्वाब। क्योंकि जब इंसान ख्वाब देखने लगता है तो वो हकीकत को खुद बदलने के लिए तैयार हो जाता है। अब तक वो तरबियत मुकम्मल कर चुका था, अब उसका असल किरदार शुरू होने वाला था। उसे बताया गया, तुम अब इकोनॉमिक हिटमैन नहीं सीख रहे, तुम इकोनॉमिक हिटमैन बन चुके हो। नया मिशन सादा लगता था, मुख्तलिफ ममालिक में जाना, हुक्मरानों से मुलाकात करना और उन्हें मुस्तकबिल का ऐसा नक्शा दिखाना जिसे देखकर वो इनकार ना कर सके। इस मरहले का नाम था ड्रीम सेलिंग, कौमों को ख्वाब बेचना। पहली मीटिंग एक सरकारी महल में हुई। सोचिए, आपका मुल्क एशिया का मुआशी मरकज बन जाए, बड़ी शाहराहें, जदीद शहर, आलमी सरमायाकारी। स्क्रीन पर मुस्तकबिल जिंदा हो गया, चमकते शहर, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार तरक्की। लीडर्स की आंखों में उम्मीद नजर आने लगी। यही लम्हा सबसे अहम होता था, क्योंकि इसी लम्हे फैसला जज्बात से लिया जाता था, मंतक से नहीं। उसे सिखाया गया था, पहले ख्वाब दिखाओ, फिर हल पेश करो और आखिर में कर्ज को मौका बना दो। वो यही कर रहा था। हर मुल्क की कमजोरी मुख्तलिफ होती। किसी को आलमी ताकत बनना था, किसी को गुर्बत खत्म करनी थी, किसी को तारीख में नाम छोड़ना था
और वो हर लीडर के ख्वाब को उसी के अल्फाज में वापस पेश करता। ये नफ्सियात का खेल था। एक बार एक वजीर ने पूछा, अगर हम कर्ज वापस ना कर सके तो? कमरे में लम्हा भर खामोशी छा गई। वो मुस्कुराया, तरक्की खुद कर्ज अदा कर देगी। ये जुमला क्योंकि उम्मीद खौफ से ज्यादा ताकतवर होती है। चंद महीनों में कई मुआहदे तय हो गए। बड़े डैम, बड़े पावर प्लांट्स, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। खबरों में तरक्की के ऐलानात होने लगे। दुनिया ने उसे कामयाबी कहा, लेकिन पर्दे के पीछे एक और हकीकत चल रही थी। कर्ज बढ़ रहे थे। मुआहिदों में ऐसी शिक्कें शामिल थीं जो मुस्तकबिल में सियासी असर रसूख देती थीं। अगर मुल्क कमजोर हो जाए तो वसाइल तक रसाई मिलती। अगर मईशत दबाव में आई तो आलमी फैसलों पर असर हासिल होता। ये कब्जा था, मगर मुस्कुराहट के साथ। एक शाम डिनर के दौरान एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने उससे कहा, हम मुल्कों पर हमला नहीं करते, हम उन्हें हमारे निजाम का हिस्सा बना देते हैं। ये जुमला सुनकर वो खामोश हो गया, क्योंकि अब वो समझ चुका था, वो तरक्की नहीं बेच रहा था, वो इन्हिसार बेच रहा था। हर कामयाब मुआहिदे के साथ उसकी हैसियत बढ़ रही थी। आला होटल्स, निजी जहाज, ताकतवर हलकों तक रसाई। ये जिंदगी नशा बन चुकी थी, लेकिन हर नशे की कीमत होती है। एक सफर के दौरान वो गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहा था। एक तरफ नई तामीर होने वाली शाहराह थी, दूसरी तरफ कच्ची बस्तियां। वो सोचने लगा, हमेशा काम करता था। क्योंकि उम्मीद खौफ से ज्यादा ताकतवर होती है। चंद महीनों में कई मुआहदे तय हो गए। बड़े डैम, बड़े पावर प्लांट्स, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। खबरों में तरक्की के ऐलानात होने लगे। दुनिया ने उसे कामयाबी कहा, लेकिन पर्दे के पीछे एक और हकीकत चल रही थी। कर्ज बढ़ रहे थे। मुआहिदों में ऐसी शिक्कें शामिल थीं जो मुस्तकबिल में सियासी असर रसूख देती थीं। अगर मुल्क कमजोर हो जाए तो वसाइल तक रसाई मिलती। अगर मईशत दबाव में आई तो आलमी फैसलों पर असर हासिल होता। ये कब्जा था, मगर मुस्कुराहट के साथ। एक शाम डिनर के दौरान एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने उससे कहा, हम मुल्कों पर हमला नहीं करते, हम उन्हें हमारे निजाम का हिस्सा बना देते हैं। ये जुमला सुनकर वो खामोश हो गया, क्योंकि अब वो समझ चुका था, वो तरक्की नहीं बेच रहा था, वो इन्हिसार बेच रहा था। हर कामयाब मुआहिदे के साथ उसकी हैसियत बढ़ रही थी। आला होटल्स, निजी जहाज, ताकतवर हलकों तक रसाई। ये जिंदगी नशा बन चुकी थी, लेकिन हर नशे की कीमत होती है। एक सफर के दौरान वो गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहा था। एक तरफ नई तामीर होने वाली शाहराह थी, दूसरी तरफ कच्ची बस्तियां। वो सोचने लगा, ये तरक्की किसके लिए है? क्या वाकई कौमें मजबूत हो रही हैं, या सिर्फ चंद ताकतवर हाथ मजबूत हो रहे हैं? इसी लम्हे उसे एहसास हुआ, ख्वाब बेचने का सबसे खतरनाक पहलू ये है, ख्वाब देखने वाला सच पर सवाल नहीं करता। और यही वजह थी कि ये निजाम इतना कामयाब था। कोई जंग नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ मुआहिदे, कर्ज और मुस्तकबिल के वादे। अब वो सिर्फ मुशाहिदा नहीं कर रहा था, वो इस खेल का अहम खिलाड़ी बन चुका था। और जितना ऊपर जाता, इतना ही नीचे छुपी हकीकत वाज़ेह होती जा रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि अगला मिशन सिर्फ मुआशी नहीं होगा, बल्कि आलमी ताकत के निजाम को बदलने वाला होगा। ख्वाब बेचने का मरहला खत्म हो रहा था। अब शुरू होने वाली थी पैसों की सबसे बड़ी कहानी। तेल, ताकत और आलमी मईशत की नई तरतीब।